Hello, good evening, dear children. Welcome to English Kingdom. I am Deepak Juneja, and today we are going to begin the lesson number 2, The Adventures of Toto. Toto here is the name of a monkey, and adventures, this refers to courageous works or mischievous works. जो शरारती काम होते हैं या कोई बहुत साहसिक कार्य होते हैं उन्हें ही हम एडवेंचर्स कहते हैं. इसी एडवेंचर से एक नाउन बनती है एडवेंचरस. एडवेंचरस मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी करेजियस. जिसे बहुत साहसिक कहा जाए उसी को ही एडवेंचरस कहा जाता है. तो हियर वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द एडवेंचर्स और द करेजियस वर्क्स और द मिसचीफ्स ऑफ टोटो. टोटो इज़ द नेम ऑफ ए मंकी. इट्स ए पैट. ये एक पैट है. आई होप यू आल्सो मस्ट बी हैविंग द पैट एट योर होम्स. और जो पेट्स जिनके घर में होते हैं दे ओनली नो, उन्हीं को पता होता है कि वेदर दे आर कंफर्टेबल विद दैट पैट और नॉट, कि वो पैट के साथ में कंफर्टेबल हैं या नहीं, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ती हैं उन पेट्स के कारण. दे ओनली नो दिस. तो हियर वी शैल बी कमिंग अक्रॉस with those problems which the family members of Ruskin Bond have to face. हम उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो रस्किन बॉन्ड के फैमिली मेम्बर्स को यहाँ फेस करनी पड़ी. रस्किन बॉन्ड हियर इज़ द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन. सो बिफोर वी बिगिन, शुरुआत करने से पहले लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन टू द राइटर के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं. रस्किन बॉन्ड इज़ ए वेल नोन नेम in the history of Indian literature. Ruskin Bond, he was born in 19th May 1934. You can see in the picture as well. He is an Indian author of British descent and he lives with his adopted family in Mussoorie. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Glow in Dehra. Dehra here refers to Dehradun, his novel in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. So basically he is known for his children's fiction. Children fiction के लिए ही जाने जाते हैं. और he has written some stories which you also must have read in your class 7th or 8th. Here it is the collection, and you can see here this one is A Tiger in the House, which is included in your class 7th syllabus also, if you remember that one. So this is all about the writer. Now we can go back to the story, that is the adventures of Toto. Now we can begin. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Mischievous means one who does many mischiefs. जो बहुत शरारतें करता है उसे हम mischievous कहते हैं. And docile उसको कहते हैं ready to control, easy to control, जिसे बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. तो monkeys तो वैसे ही mischiefs के लिए जाने जाते हैं, तो वो तो docile तो हो ही नहीं सकते, mischievous ही होते हैं. I have tried to collect some images of monkeys like Toto, लेकिन मुझे इंटरनेट पर इससे बेस्ट इमेज मिली नहीं. तो अगर आपको मिलती है तो यू कैन शेयर. लुक एट हिम. ही सीम्स टू बी वेरी मिस्चीवस एज वेल, एंड ही इज हैविंग द पर्ली वाइट टीथ एज वेल, एंड eyes also have a light and which clearly is the sign or what to say indication of mischiefs. और तो ये सब काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं टोटो से. ही इज़, इट्स नॉट द पिक्चर ऑफ टोटो, टोटो की पिक्चर नहीं है ये, बट इट्स वेरी आइडेंटिकल टू दैट. सो लेट्स अगेन गो बैक टू द स्टोरी. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. 5 रुपए में खरीदा. And later on, grandfather would be very annoyed and he would have to send it back to the same Tonga driver for 3 rupees. आप ये ध्यान रखिए, अभी टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदा, लेकिन at the end of the story you will come to know कि उसी टोंगा ड्राइवर को 3 रुपए में बेचना पड़ा. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. फीडिंग ट्रफ इज़ ए पर्टिकुलर प्लेट. एक प्लेट होती है, एक बहुत छोटा सा एरिया होता है जो किसी वुड का भी बना हो सकता है या किसी और मेटल का बना हो सकता है, जिसमें घास वगैरह या खाने का सामान डाला जाता है जानवरों के लिए, और उसी के साथ में वो बंधे हुए भी होते हैं. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. आउट ऑफ प्लेस मीन्स अनफिटिंग. मंकी वहाँ पर उन्हें इतना अनफिटिंग लगता था क्योंकि मंकी बहुत क्यूट था. उन्हें लगा कि इस जगह के लिए सही नहीं है टोंगा ड्राइवर के लिए, इसलिए ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो इस छोटे से जानवर को अपने प्राइवेट जू में लेकर जाएंगे.
So here the question comes from this particular paragraph कि why did the grandfather decide to add monkey to his private zoo? It had some reasons. The first reason was that it was very cute, and the second thing was that it was always tied to a feeding trough and it looked very unfitting to that particular place to the grandfather. That's why he decided that he would add the little fellow to his private zoo. Toto was a pretty monkey, good looking. His bright eyes sparkled with mischief. उसकी bright eyes में हमेशा mischief दिखाई देती, शरारत दिखाई देती थी. Beneath deep set eyebrows, he had deep set eyebrows. Although our monkey does not have any deep set eyebrows, maybe ये हो सकती हैं deep set eyebrows. और आँखों में आपको mischief यहाँ पर दिखाई भी दे रही है. And when we go again, his teeth which were a pearly white it means मोतियों के जैसे चमकते हुए सफ़ेद कलर के उसके दांत थे. were very often displayed in a smile. When he used to smile, Toto used to smile, and this smile frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. जो बूढ़ी एंग्लो इंडियन लेडीज हुआ करती थी उनकी तो सांस ही निकल जाती थी उस स्माइल को देख के, बिकॉज दे वर वेरी मच फियर्ड. दैट्स वाई इट्स रिटन फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. दे यूज्ड टू फियर, वो उनको उससे बहुत डर लगता था. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दाउ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. जनरली जैसा मंकीज़ के साथ में होता है, उसके हाथ बिल्कुल सूखे सूखे थे, जैसे कि बहुत सालों से सन के कारण ऐसा हो गया है. बट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत क्विक थी और बहुत ही ज़्यादा. यहाँ विकेट का मतलब है कि उसकी जो उंगलियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और साथ में थोड़ी सी नुकसान पहुँचाने वाली थी. हिज टेल, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. So what did grandfather opine about the fingers of the monkeys? Grandfather opined about the fingers of the monkeys that not fingers of the monkeys, about the tail of the monkeys, that the first thing that they would add to the good looks of the monkeys, and the second one, they served as a third hand, they served as a helping hand to the monkeys. He could use it to hang from a branch. कैसे monkeys hand का यूज़ कर सकते थे, या यहाँ टोटो इसका क्या कहते हैं, इसका टेल का यूज़ कर सकता था. He could use it to hang from a branch. किसी ब्रांच से लटकना हो तो इसका यूज़ किया जा सकता है. And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Scooping up means grabbing up. और किसी भी जैसे कोई चीज़, डेलिकेसी मीन्स टेस्टी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो उसको अच्छी लगती है उसको पकड़ने में भी उसकी ये टेल जो है उसकी हेल्प कर सकती थी. दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हैंड्स, जो हाथ से दूर हो तो आराम से वो पूंछ की सहायता से उसको पकड़ सकता था. सो हियर द क्वेश्चन अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेल फॉर द मंकी टोटो. टोटो के लिए इसका टेल का क्या क्या यूज़ था. तो यू कैन राइट दीज ऑल थिंग्स, दैट ही वुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, एंड ही वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी. स्कूपिंग अप का मतलब होता है जंपिंग एंड कैचिंग समथिंग, किसी चीज़ को अपनी तरफ पकड़ के खींचना. दैट इज कॉल्ड स्कूपिंग अप. ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट सम न्यू बर्ड और एनिमल. ग्रैंडमदर, हाउ डिड द ग्रैंडमदर रिएक्ट? शी ऑलवेज यूज टू मेक फस. फस कहते हैं हंगामा क्रिएट करना. घर में हंगामा क्रिएट कर देती थी ग्रैंडमदर जब कभी भी कोई नया बर्ड या एनिमल आता. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड. सो दिस वॉज डिसाइडेड कि टोटो की प्रेजेंस का पता नहीं चलने दिया जाएगा ग्रैंडमदर को, बिकॉज शी कुड हैव मेड ए फस, क्योंकि वो हंगामा कर सकती थी. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. So where he was kept, he was put in a little closet. Closet कहते हैं जो अलमीरा होती है वॉल के अंदर. वॉल के अंदर जो अलमीरा फिक्स होती है उसी को कहा जाता है. उसके बेडरूम की वॉल में जो क्लोजेट था उसी के अंदर रखा गया टोटो को. तो ये क्लोजेट किस तरह की दिखती है, आई कैन शो यू हियर. ऑल दीज आर क्लोजेट्स, दे आर एक्चुअली फिक्स्ड अलमीराज इन द वॉल. सो इन्हीं में से किसी छोटी क्लोजेट के अंदर, इस तरह की कोई छोटी क्लोजेट होगी या इस तरह की भी हो सकती है, उसमें उसे रखा गया था मंकी को. वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, उसे बड़ी सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया था. और सो वी थॉट टू ए पैग फास्टन्ड इन द वॉल.
उसे एक पैग जो थी उसके साथ वॉल के अंदर जो फिक्स थी उससे बांध दिया गया। ये पैग क्या होती है? लेट मी शो यू सर्टेन इमेजेस ऑफ पैग। तो ये पैग का जो सही मीनिंग यहाँ पर निकलता है वो ये वाला निकलता है, जिससे हम हैंगर जिसको बोलते हैं, जिसके साथ में कपड़े अलमीरा के अंदर लटकाए जाते हैं, उसी को पैग बोला जाता है। तो उसी में से किसी एक से यहाँ से रस्सी बांध के उसको उसके साथ में बांध के छोड़ दिया गया था। So this was done in that way. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. जब वो लौटे तो what did they find? कि जो walls थी जिनके ऊपर wallpapers लगे हुए थे, ornamental papers, wallpapers लगे होते हैं डेकोरेट करने के लिए, वो wallpapers उखड़ चुके थे अलमीरा के अंदर, क्लोजेट के अंदर, और सिर्फ दीवारें दिखाई दे रही थी जिसमें से ईंटें और प्लास्टर उखड़ चुका था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। जो पैग थी वो अपने सॉकेट से बाहर आ गई थी। ये इसका सॉकेट है और ये उस पैग उससे बाहर आ गई। अगर आप इसको पैग माने तो ये इसका सॉकेट है, इस सॉकेट से बाहर आ चुकी थी। और ये ऑब्वियसली किसने दिया था, किसने किया था? ये उसने, टोटो ने, मंकी नहीं किया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, उसका स्कूल ब्लेजर, व्हाट हैपेंड टू दैट, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स मीन्स इन पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो गया था वो। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, ग्रैंडफादर वुड, सॉरी, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। मुझे लगा कि ग्रैंडमदर आप देखेंगी तो इसको हंगामा करेंगी डेफिनेटली, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। बट ग्रैंडफादर वॉज नॉट इन टेंशन। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटो's परफॉर्मेंस। ही वॉज वेरी हैप्पी कि व्हाट अ परफॉर्मेंस टोटो हैज़ गिवन। टोटो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ही इज क्लेवर। गिवन टाइम, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. Grandfather ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा मजाक किया। Given time means अगर उसे टाइम मिल जाता, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. तो वो तुम्हारे ब्लेजर के जो फटे टुकड़े हैं उनको मिला के एक रस्सी बना लेता, and made his escape from the window, और खिड़की से कूदकर भाग जाता। His presence in the house still a secret. Nobody knew. I don't know that how did they hide that particular loss which happened in the closet. पता नहीं उन्होंने किस तरह से उस क्लोजेट के अंदर जो लॉस हुआ था उसको कैसे छिपाया, but somehow it was kept secret and the grandmother particularly did not know what was there. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. So now his place was changed and he was kept in a big cage in servants' quarters, and some more animals were also there. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat also. All these animals were there and he was kept with all those animals there. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. But here also it was very annoying. यहाँ भी वो बहुत टेंशन दे रहा दूसरों को, अपने कंपेनियंस को रात को सोने नहीं दिया करता था। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. That's why grandfather took a big decision. And what was the big decision? To take him to take him towards Saharanpur. Saharanpur उन्हें जाना था grandfather को अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो he decided that he would take him along, कि वो उसे अपने साथ में लेकर जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. The writer was not able to accompany grandfather. Writer grandfather के साथ में उस ट्रिप पर नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने बाद में इस कहानी के बारे में उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया। What happened there? A big black canvas kit bag was provided for Toto. Toto के लिए एक बड़ा सा black canvas kit bag बनाया गया। This with some straw at the bottom, some straw, घास रखी गई bottom पर, became his new abode. Abode कहते हैं dwelling place, residence. ये उसका अब नई जगह बन गई थी, रहने की जगह। When the bag was closed, बैग बंद कर दिया गया, there was no escape. अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening. Toto अपना ओपनिंग से उस जो बैग का ओपनिंग था वहाँ से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through. And canvas जो मटेरियल था that was very strong for him to bite. उसको काट नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. And he was continuously doing his efforts to come out of the bag. बार बार वो कोशिश कर रहा था उस बैग से बाहर आने की कोशिश, but it was in vain. ये जो कोशिश थी बिल्कुल असफल हो रही थी। और what was appearing there, हो क्या रहा था उस बैग के अंदर कि बैग रोल हो रहा था फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर
लुढ़क रहा था, या फिर कभी कभी अचानक से एयर के अंदर जंप कर देता। बस इतना ही ये एक तमाशा बन गया था, एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शन, एक तमाशा दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स एंड दिस हैड बिकम अ source of attraction for all the people who were standing at the देहरादून रेलवे स्टेशन। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो भी लोग खड़े थे उनके लिए एक तमाशा बन गया था। एंड द मंकी वॉज डूइंग ईच एंड एवरी एफर्ट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द कैनवस बैग। टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। टोटो सहारनपुर तक तो कोई टेंशन नहीं दिया, बैग में ही रहा। But when in Saharanpur, when the grandfather was about to come out of the railway station, railway turnstile, ये turnstile क्या होता है? The picture is shown in the lesson itself. You can see here. This is turnstile. You can see here. इसमें से एक ही आदमी, ये आपने देखा होगा गार्डन वगैरह के बाहर लगा हुआ मिलता है, इसमें से एक टाइम में एक या दो आदमी ही अंदर बाहर जा आ सकते हैं। तो this has the purpose of actually checking the tickets। ये टिकट्स चेकिंग करने के लिए पर्पज से बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन, दे हैड रीच सहारनपुर रेलवे स्टेशन एंड ऑल द एफर्ट्स ऑफ द मंकी हैड गॉन इन वैन अनसक्सेसफुल। मंकी के जितने भी एफर्ट्स है सब अनसक्सेसफुल रहे थे। लेकिन जैसे ही रेलवे टर्नस्टाइल के पास में टिकट चेकअप के लिए ग्रैंडफादर पहुँचे अपने साथ में बैग लेके, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो ने अचानक से अपना सिर, हेड जो है उसके बैग के बाहर निकाल दिया। मीन्स ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज एफर्ट एट द लास्ट टाइम एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन। और जो टीसी था उसे एक बड़ी सी स्माइल दी। ग्रिन कहते हैं स्माइल। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। द पुअर मैन, दिस पुअर मैन रेफर्स टू द टिकट कलेक्टर। ही वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक मीन्स ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज शॉक्ड, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस। लेकिन अपने पूरे माइंड की प्रेजेंस के साथ में और ग्रैंडफादर्स की प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए, अनोयंस मीन्स टेंशन, ग्रैंडफादर की टेंशन बढ़ाने के लिए ही उसने ऐसा कहा। मतलब उसने कहा लेकिन उससे ग्रैंडफादर की टेंशन बढ़ गई। व्हाट वाज दैट? सर, यू हैव ए डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। इट वाज ए मंकी बट ही मिस आइडेंटिफाइड हिम एज ए डॉग। उसे लगा ये डॉग है, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको ये डॉग है, इसकी कीमत एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग? In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped। ग्रैंडफादर ने पूरी कोशिश की टोटो को बैग से बाहर निकालने की, नहीं निकाल पाए। पूरी कोशिश की उसको प्रूव करें कि मंकी जो है ये डॉग के लिए क्वालिफाई नहीं करता, मंकी और डॉग में बहुत फ़र्क होता है। और ये इवन एज ए क्वाड्रॉप्ड, यानी ये कोई 4 पहिए वाला कोई वो भी जानवर नहीं है इस तरह का। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन टोटो को तो टिकट कलेक्टर ने एक डॉग डिक्लेयर कर दिया था एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। और उसका जुर्माना लगा, 3 रुपये उनको उसके देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉटस एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। देन ग्रैंडफादर ने फिर अपने पॉकेट से अपना टॉटस भी निकाला। टॉटस निकाल के बोला इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा क्योंकि तुम सारे एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉटस, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर। प्रोडेड का मतलब होता है स्किन को ऊपर से सहलाना। पैट किया उसको अपनी 4 फिंगर से और उसको सहलाया उसकी स्किन को। और फिर ग्रैंडफादर को एक प्लीज्ड और ट्रिम्फेंट विक्टोरियस, ट्रिम्फेंट का मतलब होता है विक्टोरियस लुक, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस लुक। उन्हें कहा कि नो चार्ज, नहीं ये डॉग नहीं है। तो इसका मतलब ये डॉग नहीं है, तो फिर पीछे वाले को जो मंकी को डॉग के रूप में क्यों आइडेंटिफाई किया? सो यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस इज सहारनपुर रेलवे स्टेशन। ही हैज कम देयर टू कलेक्ट हिज पेंशन, ग्रैंडफादर, एंड हियर यू कैन सी द मंकी गिविंग ए वाइड ग्रिन टू द टिकट कलेक्टर एंड टिकट कलेक्टर इज आस्किंग फॉर द फाइन। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। और लास्ट में टोटो को ग्रैंडमदर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, उसे एक कंफर्टेबल होम मिला स्टेबल के अंदर। स्टेबल कहते हैं जहाँ जानवरों को रखा जाता है। स्पेशली इट रेफर्स टू द हाउस, द पर्टिकुलर पैट्रोनेज और द शेल्टर ऑफ हॉर्सेस। घोड़ों के लिए रखा, जो घुड़साल होती है उसे स्टेबल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सभी जानवरों के लिए रेफर हो रहा है। वेयर ही हैड फॉर हिज कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। वहाँ पर उसके साथ में एक उनका फैमिली डोंकी भी था, नाना।
On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. So it was the first night in the stable, and grandfather was worried about his stay there, so he just wanted to check. To his surprise, he found Nana without apparent cause. और when he went there, what did he find? कि जो नाना यानी जो डोंकी था, बिना किसी कारण के पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपने हाल्टर को खींच रहा था, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, और घास का जो बंडल रखा हुआ था, घास का जो ढेर रखा हुआ था, उससे अपने मुंह को दूर रखने की कोशिश कर रहा था. What is this halter? I'm going to show you some picture of halter. This is halter, which is generally tied at the face of the animals just to control them. इनको लगाम भी बोलते हैं. तो ये उसको इस halter को दूर से खींचने की कोशिश कर रहा था. तो why was he doing like that? ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा था? Grandfather gave Nana a slap across her haunches. Why did grandfather did like that? Grandfather ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसको अलर्ट कर सकें कि why he was doing like that. And she jerked back. Okay, ये ही नहीं है, she है, ये एक्चुअल में फीमेल डोंकी है. She jerked back, उसने पीछे झटका मारा. Dragging Toto with her, और टोटो उसके साथ में घिसटता हुआ है. टोटो कर क्या रहा था? He had fastened onto her long ears. वो उसके लंबे लंबे कानों के ऊपर चिपक के बैठ गया था with his sharp little teeth. तो एक्चुअल में वो जो ये डोंकी था वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी उससे, और ग्रैंडफादर को क्या लगा कि वो अपने आप को घास के बंडल से दूर रखने की कोशिश कर रही है. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. ऑब्वियसली दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स because of the mischiefs of Toto. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. टोटो को जो सबसे चीज़ अच्छी लगती थी कोल्ड विंटर इवनिंग्स को, वो थी लंबा एक जो बड़ा सा कटोरा हुआ करता था गर्म पानी का, जिसमें उसे एक जो ग्रैंड मदर देती थी नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. वो धीरे से पहले अपने हाथ से टेम्परेचर को टेस्ट करेगा. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. धीरे धीरे अंदर नहाने जाएगा. फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, फिर दूसरा. एज ही हैड सीन मी डूइंग ऑल्सो, क्योंकि उसने मुझे भी ऐसा ही करते देखा था. until he was into the water up to his neck. और जब तक पानी उसकी गर्दन के पास नहीं आ जाएगा तब तक वो अंदर जाता जाएगा. Once comfortable, एक बार comfortable हो गया, he would take the soap in his hands or feet. तो अपने हाथ और पैर में साबुन लगाएगा. rub himself all over, और अपने आप को रगड़ेगा. When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाएगा, he would get out, बाहर भाग के आएगा. run as quickly as he could to the kitchen fire, और जो किचन में आग जल रही होती उसके पास में पहुंच जाएगा. इन ऑर्डर, किचन में आग खाना बनाने के लिए जल रही होती, वहाँ अपने आप को सुखाने के लिए चला जाता. इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, अगर उसकी इस परफॉर्मेंस के दौरान अगर कोई हंसता, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती. एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने से मना कर देता. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक बार तो टोटो अपने आप को लगभग जला ही लेता, उबाल लेता. क्या हुआ? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक बड़ा सा किचन केटल फायर के ऊपर रखा हुआ था पानी उबालने के लिए, चाय के लिए और टोटो के लिए. चाय के लिए उबालने के लिए रखा हुआ था. एंड टोटो, और टोटो ने क्या किया था? फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, कुछ भी नहीं करने के लिए उसने कुछ काम नहीं था, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसका ढक्कन हटा दिया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और उसे लगा पानी नहाने के लिए ठीक है. ही गॉट इन, अंदर घुस गया. एंड विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और केटल से सिर्फ उसका सिर ही बाहर दिखाई दे रहा था. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ मिनट के लिए तो अच्छा था. अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, और जब तक पानी उबला नहीं तब तक तो सब कुछ वो सहन करता रहा. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर वो थोड़ा सा बाहर ऊपर निकला. एंड फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और उसे लगा बाहर ठंडा है, फिर से दोबारा बैठ गया. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन, वो लगातार ऊपर नीचे होता रहा कुछ देर के लिए. अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, और उसी समय ग्रैंड मदर पहुंच गई. एंड हॉल्ड हिम, और भगा दिया उसे. हाफ बॉइल्ड, आधा लगभग उबल ही गया था आउट ऑफ द केटल से बाहर. इफ देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. अगर ब्रेन में कोई हिस्सा होता है जो सिर्फ शरारत करने के लिए बना होता है, तो वो तो पूरा का पूरा हिस्सा टोटो में डेवलप हो गया था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा चीज़ों को तोड़ने, फोड़ने में विश्वास करता था.
Whenever one of my aunts came near him, जब भी हमारी आंट्स में से कोई भी उसके पास में आती, he made every effort to get hold of her dress. वो पूरी कोशिश करता कि उसके कपड़े पकड़ ले and tear a hole in it, और उसके अंदर कोई छेद कर दे. One day at lunch time, एक बार एक लंच के समय में a large dish of pulao stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल के सेंटर में एक बहुत बड़ी डिश प्लेट रखी हुई थी पुलाव की. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. हम जैसे ही कमरे के अंदर घुसे हमने पाया कि टोटो ठूस ठूस के चावल खा रहा था. माई ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड, ग्रैंडमदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर. टोटो ने उठा के एक प्लेट उसकी तरफ फेंकी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और मेरी एक आंट आगे दौड़ी एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसके चेहरे पर पानी का एक गिलास आकर टकराया. व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, उसके बाद दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो. टोटो ने अपना पुलाव की डिश उठाई और विंडो से कूदकर भाग गया. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और फिर वो हमें जैक फ्रूट ट्री की ब्रांचेस में दिखाई दिया. जैक फ्रूट ट्री किस तरह का ट्री होता है, लेट मी शो यू. दिस वन इज जैक फ्रूट ट्री. आप जानते ही होंगे, इसे कटहल भी बोलते हैं इसे. दिस इज जैक फ्रूट ट्री. उसके बाद में व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, हाँ, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. प्लेट अभी भी उसके आर्म्स में थी. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून. पूरे आफ्टरनून वहीं रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस. और थ्रू द राइस का मतलब है कि मंकी जो होता है वो अपना मुंह घुसा घुसा के खाता है चावल वगैरह में, तो इसलिए थ्रू द राइस लिखा है. डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो एक एक दाना ख़त्म करना चाहता था. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और तब ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसकी तरफ देखकर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. उसने प्लेट उठाकर खिड़की से, पेड़ से नीचे फेंक दी. एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से नाचने लगा. व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब इसके बहुत सारे पीसेस हो गए, टूट गई है. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. बिल्कुल अपेरेंटली इट वॉज क्लियर दैट टोटो इस तरह का पेट था जिसे हम लंबे समय तक नहीं रख सकते थे. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज हो गया. वी वर नॉट वेल टू डू. वेल टू डू एक फ्रेज है जो रिच लोगों के लिए रेफर करता है. हम पैसे वाले नहीं थे एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज. और बार बार ये डिशेज का, कपड़ों का, पर्दों का, वॉलपेपर्स का ये लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. इसलिए ग्रैंडफादर ने वापस उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढ निकाला एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसे ही वापस बेच दिया. दिस टाइम फॉर ओनली 3 रुपीज़. सो 2 रुपीज़ लॉस वॉज देयर, बट in addition to that 2 rupees loss, there were many kinds of losses were there, like plates and wallpapers, dishes, curtains. So this was the story. This was by Ruskin Bond. If you have any difficulty, please drop your comments in the comment box. Thank you.